So we are going to study the cerebrum today. Cerebrum, a well-developed cerebrum, that is what differentiates us from animals. You see animals don't have a well-developed cerebrum. Most of them function on lower centers than cerebrum. Like example, we have basal ganglia. I know by now you have heard of basal ganglia, caudate nucleus and all. Basal ganglia are there inside the cerebrum. Most of the animals, they work on basal ganglia, like the birds which fly. Basal ganglia are the highest centers for automatic associated movements. You have studied cerebellum by now, cerebellum? Cerebellum has nuclei inside. Okay, I'll talk about the basic difference. So you have studied the spinal cord. In spinal cord, the gray matter is inside, white matter is outside. Right? In spinal cord, yeah, gray matter is inside, white matter is outside. तू त्याच्यावर लक्ष नकोस देऊ, तुझं जो बघते काय व्हायचंय ते होत. What happens in cerebrum? In cerebrum, the gray matter is outside. So when I will draw a cerebrum for you, here will be gray matter. Then there will be white matter. So this gray matter migrates in cerebrum and cerebellum to the surface. So in spinal cord, on the surface, superficial is white matter, deep is gray matter. This gray matter migrates to the surface in case of cerebrum and cerebellum. Some gray matter does not migrate. The gray matter which does not migrate in case of cerebellum forms the 4 cerebellar nuclei. Okay? That is fat, girls eat dhokla, fastigian, globus, emboliformis, dentate. We'll learn about that in cerebellum. We should not call each other, at least I don't have a right to call anybody fat, but that's the mnemonic which is used in medicine. In case of cerebrum, the gray matter which does not migrate will form nuclei inside. So iske andar there will be nuclei, and that nucleus is the caudate nucleus, lentiform nucleus, the basal ganglia. So what are basal ganglia? Basal ganglia is gray matter inside the cerebrum. Okay, so there is 2 places there is gray matter in cerebrum, one on the surface, one in the deeper aspect. The gray matter forms nuclei called as basal ganglia. This surface of the cerebrum, in case I'm making by slip of tongue, if I'm saying cerebellum, please correct me at some point. This surface of cerebrum is called as superolateral surface. This is the superolateral surface, and this sulcus over here is called as lateral sulcus. Lateral sulcus. Inside this lateral sulcus is the middle cerebral artery. That means the middle cerebral artery is going to supply most of the superolateral surface. Okay, most of the superolateral surface. Here down is a preoccipital notch. This is the occipital pole. Okay, this is the frontal pole. This is the temporal pole. So there are 3 poles. Frontal, temporal, occipital. So frontal pole, temporal pole, and इसको थोड़ा मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो ऑसिपिटल पोल. आपने बचपन में फाइंडिंग नीमो देखा रहेगा, नीमो. Okay, so this is how Nemo looks like. So this is occipital pole.
occipital, occipital, whatever you want to say. This is the occipital bone. This is pre-occipital notch. There is one sulcus which is on the medial surface, but it slightly comes here on the superolateral surface, and that sulcus is parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus. So we draw. तो कोपऱ्यातला मुलगा तिथे सेकंड काय रे बाबा रात्री काय पाणी सॉफ्ट ड्रिंक काय नाही डोळे मिटलेस म्हणून. So we draw two imaginary lines from parieto-occipital sulcus to pre-occipital notch. This is first imaginary line. Beyond that line, behind that line, what we see is occipital lobe. Pre-occipital notch to parieto-occipital sulcus. There is going to be a separate lecture on cerebrum. I'm just giving you an idea. And then you extend. Here there is a central sulcus. Central sulcus I have already taught you. Okay? There is central sulcus. Okay? So you extend the lateral sulcus behind. You extend the lateral sulcus behind. So you draw a first imaginary line here, second imaginary line here. After finishing these two imaginary lines, now you can see the four lobes. Ahead of central sulcus is frontal lobe. Behind the central sulcus and first imaginary line and above the second imaginary line is parietal lobe. Below the lateral sulcus and second imaginary line is temporal, and behind the first imaginary line is occipital. The four lobes. दोषी लक्षात आलं? Four lobes. Now, in the frontal lobe, there are two sulci, superior frontal. This is very easy. Superior frontal sulcus, inferior frontal sulcus, superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus. वैसे ही टेम्पोरल लोब में सुपीरियर टेम्पोरल sulcus, inferior temporal sulcus, superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus. Okay? So this is how sulci and gyri. Parietal. Now here, before talking about parietal, there is pre-central sulcus and post-central sulcus. Pre-central sulcus and post-central sulcus. There is pre-central gyrus. There is post-central gyrus. तो ये सब आपको देखना है. Pre-central gyrus, post-central gyrus. Okay? Then here there is one sulcus called as intraparietal sulcus. Intraparietal sulcus. Then there is superior parietal lobule and inferior parietal lobule. Superior parietal lobule, intraparietal sulcus. Intraparietal sulcus, superior parietal lobule and inferior parietal lobule. Okay? Here there is a sulcus called as lunate sulcus. Then transverse occipital sulcus. Okay? Lunate sulcus, transverse occipital sulcus. Lunate. Now here, this, what I had drawn as the lateral sulcus is actually starts from here, and it has an anterior ramus which goes like this, ascending ramus, and this
what we have actually drawn is the posterior ramus of the lateral sulcus. So lateral sulcus, हम लोग इसको अभी तक lateral sulcus बोल रहे थे, but actually there are three parts. There are two short rami, anterior, ascending, and a long called as posterior ramus. So actually when you see this is the posterior ramus of the central sulcus. Okay? और यहाँ पे बीच में ये दोनों के एंटीरियर और असेंडिंग के बीच में there is area 44-45 which is the Broca's speech area. Broca's speech area जो आप बड़ करते हो, that is because of area number 44 and 45. हाँ, उभा रहा तो लास्ट बेंच. हाँ, जो आता असा करत होता ना. उभा रहा जागेवर उभा रहा. जराशी झोप जाती. Now here, above this, there are above the superior temporal gyrus. मतलब यहाँ पे मैं हाथ डालूं और देखूं, जो कि ये एंगल से नहीं दिख रहा. तो above this there are two transverse temporal gyri, जहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है. यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी ऑडिटरी एरिया. किताब खोल के कौन बैठा है आज? मुझे चाहिए. कोई नहीं, किताब लाया ही नहीं. 41-42, दैट इज एरिया नंबर 41-42. Okay, 41-42. Here we have Nisham. It's okay. Then here in this area we have 9, 10 and 11. 12 is on the medial side. 9, 10 and 11. 12 is on the medial side. Area number 9, 10, 11, 12. Prefrontal cortex. Decision making. जो आज आप दोपहर को 1:30 बजे करेंगे. Problem solving. Okay? जो आप कल से कर रहे थे कि टेस्ट 9 बजे होगा या 1:30 बजे होगा, 9 के लेक्चर को जाऊँ कि नहीं जाऊँ, रिक्स लेने का कि नहीं लेने का. प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर थिंकिंग. दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. ओके, वन रीजन हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ऐसा हमारा डेवलप्ड है. बाकी कोई एनिमल में इतना बड़ा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता है. इसलिए दैट्स वाई हमारे साधु संत सब क्या बोलते हैं? ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. आप कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किधर भी आप ऐसा नहीं देखते कि कोई कुत्ता जा रहा है वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है, गया नमस्कार कर रहा है एकदम रेगुलरली, नहीं दिखता है. बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज डेवलप्ड ओनली फॉर 4 थिंग्स: ईटिंग, मेटिंग, sleeping, defending. Now just try to see if I sound logical for you. They only live for these 4 things: eating. Human life तो आप बोलेंगे भाई हम लोग करने का कि नहीं करने का. ये तो human life is meant for regulated eating, regulated mating, regulated sleeping and regulated defending. एनिमल लाइफ इज मेंट फॉर अनरेगुलेटेड ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग. आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अभी बाबा रणछोड़ दास की तरह प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ. अ पिग इट्स एंड इट्स एंड इट्स. अपन बोलते हैं ईटिंग लाइक अ पिग. इट डजंट बिकम डायबिटिक.
Human beings eat and eat and eat, they become diabetic. Sleeping, polar bears can sleep for 6 months, वो हाइबरनेशन, उनका डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता. You are going to become doctors and you will realize that when patient is lying on the bed for 1 day, 2 day, you immediately tell the relatives to massage the calf, otherwise deep vein thrombosis. We cannot lie down also for a long time. Mating, the monkeys, the HIV virus is a normal virus in case of monkeys. उनके बॉडी में होता है, but doesn't cause AIDS to them. That they have unrestricted sex. Monkeys, human beings, moment they indulge in unrestricted sex life, there is sexually transmitted disease. Okay, there is AIDS, there is syphilis and many things. So human life is meant for कि husband, wife, बच्चे, that is what it. तो लोग बोलते नहीं, we want क्या बोलते हैं, Western culture of openness. Actually that culture is animal culture. They don't have, उनका ऐसा ही नहीं है husband, wife, उधर एकदम इज्जत से बहुत few animals है. Now defending. You see how a cat walks on the street, आप थोड़ा ऐसा तो वो टेंशन में चलते कि कहीं कोई कुत्ता आ जाए. A sparrow eating grains, it eats one grain, then it looks here, then it looks there. इतना टेंशन में कि कोई कैट ना आ जाए, बट उनको किसी को हाइपर टेंशन नहीं होती. आप इतना टेंशन में जियोगे कि ये आएगा क्या, एमसीक्यू आएगा, इस पे एमसीक्यू, हर लाइन पे आपको लग रहा है एमसीक्यू आएगा, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, फिर हाइपर टेंशन. सो वी आर नॉट सपोज टू लिव फॉर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफरेंट. थोड़ा एक फेथ फैक्टर हम लोग बोलते हैं कि वो ह्यूमंस में पॉसिबल होता है. वो अपने प्लेस ऑफ फेथ ऑफ वर्शिप, वॉट एवर विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, एवरीवन हैज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट फ्रॉम बुद्धिस्ट to Christians, to Muslims, to Hindus, to why we go? Because for that is not that kind of life of remaining dependent on God is not possible for animals, which okay हमारे लिए possible है. तो थोड़ा सा एक divine component होता है, and this 9, 10, 11, 12 plays a major part in that. So we should not, इसके लिए हम लोग बोलते हैं human life is very precious. We should not waste it living like animal. Because living like animal, we end up getting disease. So थोड़ा सा discrimination we have to use. So now here is 8. मैं उल्टा जा रहा हूँ. Here is 8. 8 is prefrontal eye field. Prefrontal eye field. Prefrontal eye field मतलब हम लोग जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो इस साइड का lateral rectus, इस साइड का medial rectus, यहाँ से ऐसे देखते हैं. तो so that coordination is done by prefrontal eye field. 1, 2, 3 I have already taught you. They are here. 1, 2 and 3. The primary motor area. Primary motor area. पहला sensation वहाँ पे जाता है. Okay? 1, 2, 3. Then here is 5 and 7. Secondary or association sensory area. Association sensory, सारे sensations वहाँ पे स्टोर होते हैं. कहाँ पे? नंबर 5 and 7. आपने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया पहली बार, ये रिमोट है तो वो टच से समझ लेता है ये टेबल है, वुड है, ओके, ये पिताजी का हाथ है. तो फर्स्ट सेंसेशन वो समझ लेता है और वो स्टोर कर लेता है. 4 इज प्राइमरी मोटर. 4 क्या है? प्राइमरी मोटर. अभी ये सब जगह पे ना हमारा बॉडी जैसे ये प्राइमरी मोटर में ना
हमारा बॉडी ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेड होता है, उल्टा शीर्षासन. एंड दिस small strip above is supplied by anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery. See now how anatomy becomes interesting. तुझ्या बाजूचं हां, जागे ना तुम्ही काय. Anterior cerebral artery gets blocked. Anterior cerebral artery gets blocked. What happens is exactly it area where the legs are there, lower limbs, leg नहीं lower limbs, वो area damage हो जाता है. So the person will suffer from paraplegia of the lower limb. So paraplegia, then you have to think whether anterior cerebral is affected, because body is represented like this. सेंसरी एरिया में ऐसा नहीं है. सेंसरी एरिया में ना पॉइंट्स वेयर द सेंसरी रिसेप्टर्स आर मोर, वो ऐसा बड़ा बड़ा दिखेगा, और अंगूठा ऐसा दिखेगा सडनली. ओके, आवर बैक, ह्यूज बैक भी है, उसमें इतना 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता जितना कि हैंड्स में रहता है, और हैंड्स आर मोस्ट सेंसिटिव. ओके, सो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे. 6 is premotor, 4 is motor, 6 is premotor. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको किसी ने कान के नीचे बजाया, पहले सेंसेशन 1 2 3, 3 1 2 बोलते हैं इसको, 1 2 3 नहीं, आई एम सॉरी, राइट 3 1 2, 3 1 2, 3 6 12. सॉरी, मेरा somehow I forgot 3 1 2. हमारे KEM के सामने था 312 का बस स्टॉप, तो बच्चे वो सब याद रखते थे. Now I also left, 5 साल हो गए मुझे. 3 1 2, 3 1 2 पर पहला सेंसेशन जाता है, फिर वो 5 7 को पूछता है. क्या पूछता है? ये क्या था? फिर 5 7 ने स्टोर किया रहता है, अपने रूटीनली कान के नीचे खाया है, तो वो बताता है कि आपको तुमको मारा. फिर यहाँ से जाता है सेंसेशन कहाँ पे? लिम्बिक लोब, माइंड. नाउ माइंड 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 हम लोग इतने बोलते हैं, आई थॉट केम इन माई माइंड एंड आई थॉट. वो माइंड है ही नहीं, किधर है? इधर. पूरा आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइंड, नो वेयर देर इज माइंड. ओके, किधर भी नहीं हो. तो मैंने आपको इसके ऊपर पहले से लेयर्स ऑफ सोल में सिखाया. तो वो फिर उधर से माइंड में से जाके डिसाइड करते कि अपने को मारने का है, उल्टा. फिर वो प्री मोटर विल पूरा आपका प्लान बनाएगा कि लेफ्ट हैंड ऐसा जाएगा, पकड़ेगा, राइट हैंड ऐसा जाएगा. फिर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो धमाल पिक्चर देखा ना, वो ऐसा 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 करते एस्टिमेट करता है ना, दिस इज लाइक 40 किलोमीटर, दिस इज 20 किलोमीटर, उस स्पीड से उसको बचाएंगे. तो प्लानिंग ऑफ मोटर एक्शन हैपेंस इन एरिया नंबर 6. 6 tells 4 executes. 4 में देर आर पिरामिडल सेल्स, जहाँ से पिरामिडल ट्रैक चालू होता है. पिरामिडल ट्रैक स्टार्ट्स इन 4, सम कम फ्रॉम 6 ऑल्सो. यहाँ पे है एरिया नंबर 41 42. Above the superior temporal gyrus, above, this is primary auditory area. Primary auditory area. और surrounding that is area number 22. बाकी भी है यहाँ पे 40 39, मैं नहीं बताऊँ. This is association auditory. This is association auditory. What is association auditory area? वहाँ पे स्टोर किया जाता है, हाँ, मेमोरी ऑफ साउंड. आपने कहाँ पे सुना है, कहाँ पे सुना है, वो वहाँ पे स्टोर होता है. तो हम अब जब एग्जाम में आपको पूछते हैं ना, व्हाट इज अल्नार पैराडॉक्स, तो बोलते सर सुना है, सर सुना है, सर सुना है.
तो ये 41, 42, 22 को पूछते हैं, बाबा बोल ना कहाँ सुना है? सर सुना है सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सर 7 अल्लाह चलना, कुछ सुना भी नहीं रहता एक्चुअली। आप लोग ड्रामा करते सुना है, और हम लोग बिलीव भी करते हैं, आपने सुना है तो हम भी बोलते हैं भाई इसका 22 मदद करो इसको। बार बार सुनोगे तो 22 में स्टोर होगा। बार बार सुनने के लिए एनाटॉमी बाय वाईजे के वीडियोस को देखिए। उधर आप वो 22 में स्टोर हो जाएगा। हाँ 22 क्या है, उसको बोलते हैं वर्निकेज एरिया। सो ये ब्रोकाज है, ये वर्निकेज है। वर्निकेज इज नॉट एग्जैक्टली 22, ये सारा एरिया ना वर्निकेज है। वर्निकेज इज नॉट ओनली एसोसिएशन speech. Wernicke's is not exactly the association auditory. ये एरिया में Wernicke's एरिया होता है. It is responsible for comprehension. Comprehension. So 44-45 is motor speech area, and this is sensory speech area. ऐसे बोल सकते. Sensory speech area मतलब क्या? क्वेश्चन क्या है समझो, फिर आंसर दो. तो दिस हैज टू बी वर्किंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन इज बाय वर्निकेज. कॉम्प्रीहेंशन इज बाय वर्निकेज. तो पहले क्वेश्चन समझो, फिर मोटर स्पीच एरिया से आंसर दो. तो हम लोग पूछते हैं व्हाट इज अल्नार पैराडॉक्स. सर अल्नार नो रूट वैल्यू C7 C81. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अल्नार पैराडॉक्स. हाँ सर, अल्नार नो डज नॉट सप्लाई एनी मसल इन द आर्म. दिस इज मोटर अफेजिया. इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंशन इज लॉस्ट. तो ऐसे अपन जो बोलते हैं ना कि बड़बड़ रह रहा है, बड़बड़ कर रहा है, हम लोग क्या पूछ रहे तेरे को, तू क्या बोल रहा है. इसको पूछा मैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोली कि सर मैं कांदिवली से आती हूँ. अरे घाटकोपर से. क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा एरिया अफेक्टेड है, वर्निकेज. उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, वो बस बोल रही है सर्टेन वर्निकेज इज अफेक्टेड. ओके. हाँ, इसको मैं पूछता हूँ कि तू कहाँ से आ रही है, तो फिर वो लिख के दिखा रही घाटकोपर. घाटकोपर ना, घाटकोपर. That means Broca's is affected, Wernicke's is intact. She is understanding the question but not able to speak. When both are affected, it is called global aphasia. ना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. Global aphasia happens during vivas. That is when global aphasia happens. ये समझ में नहीं आ रहा क्या, ना बोलने को हो रहा है. ओके. With that, we move on to the medial surface. डॉट 12 बजे खत्म करूँगा, डोंट वरी, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं. नाउ मीडियल सरफेस जब आप देखते हो तो स्ट्राइकिंगली ऑन द मीडियल सरफेस फर्स्ट थिंग यू सी इज कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम, ये आपने सुना है. कॉर्पस कैलोसम वर्ड भी आपने सुना है. कॉर्पस कैलोसम connects the two hands. With that, I must tell you the fibers which are there inside the corpus callosum are called commissural fibers. Commi, C-O-M-M-I, sural, S-U-R-A-L, commissural fibers. Okay? तर कोणाला वाटत असेल की आपल्यामध्ये काही कमी आहे तर काय म्हणायचं, माझ्याकडे काय आहे, कमिशुरल फायबर्स आहेत. डोंट वरी. काय आहे तुमच्याकडे, कमिशुरल फायबर्स. कमिशुरल फायबर्स.
Commissural fibers connect the same areas of different hemispheres. There are three types of white fibers. There are three types of white fibers which are there inside the cerebrum. One, commissural fibers which connect same areas of different hemisphere. उसका फायदा क्या है? हमारे राइट हैंड से हम जो भी कर रहे हैं, सडनली एक दिन राइट हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, हम लेफ्ट हैंड से खाना खाने को चालू करते हैं. हमने कभी सीखा नहीं लेफ्ट हैंड से खाना खाना, बट सीख जाते हैं. हमको राइट हैंड से हमने ABCD लिखने को सीखा, तो लेफ्ट हैंड से सडनली when something happens we are able to write ABCD, although I have never learned, but I am able to write all this because right hand has learned it. This is because of thanks to corpus callosum. Similarly, inside the cerebrum there are 5 white fibers which run like this, like this, like this, like this, in the same hemisphere. They are called association fibers. What are association fibers? Connect different areas of the same hemisphere. Different areas of same hemisphere. What are they? Association fibers. क्या है? Association fibers. Okay? तो इनके नाम है कुछ, सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, परपेंडिकुलर, सिंगुलेट. मतलब ये कैसे डिस्कनेक्ट्स ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, डिस्कनेक्ट्स ऑक्सीपिटल टू टेम्पोरल, डिस्कनेक्ट्स फ्रंटल टू टेम्पोरल, डिस्कनेक्ट्स पैराइटल टू टेम्पोरल. ऐसे उनके अलग अलग नाम है. एसोसिएशन. थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कौन सा है व्हाइट फाइबर्स? कमीशुरल. दूसरा कौन सा है? थर्ड कैटेगरी, कहाँ खो गया था भाई? थर्ड इज प्रोजेक्शन. क्या है? प्रोजेक्शन. तो सोच रहा था कि क्यों न्यू ईयर एंजॉय नहीं किया, मैं तो अपर लिम लोअर लिम पढ़ रहा था. बुरा लग रहा है क्या तुमको? प्रोजेक्शन फाइबर्स एग्जाम्पल इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो सेरेब्रम से नीचे प्रोजेक्ट करता है. कॉर्टिकोबल्बार जो स्पाइनल ब्रेन स्टेम पे जाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है. सो व्हाट इज दैट? प्रोजेक्शन फाइबर्स. दिस कॉर्पस कैलोसम has part, this part is called genu. Genu means bend. Genu valgus, genu varum. मैं कहीं MCQ के क्वेश्चंस तो लीक नहीं कर रहा हूँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. Genu valgus, genu varum, ऐसा कुछ कंडीशंस होता है. Then there is body of the corpus callosum, okay, and there is splenium, body, genu and rostrum, rostral cranial most. So उसका starts with rostrum, then genu, then body, then splenium. Okay. Now I will draw जगह रखा था ना चिंगूस जैसा आपने किधर. तो तुम्हारे पास पेजेस नहीं है क्या? ऐसे क्या करते चेंगड़गिरी. ओके. दिल्ली वाले पब्लिक, आप लोग मराठी सीख रहे हैं कि नहीं? कितने 3-4 लोग हैं ना वहाँ पे बैठे हुए. लड़का भी, तू भी हाँ दिल्ली से. और वो चौथा, चारों दिल्ली से. 3 और कौन है दिल्ली से? मराठी सीख रहा है कि नहीं? चेंगटगिरी मतलब क्या? This is high level Marathi which is spoken only in Mumbai.
मैं आपको बताया कि नहीं, मेरे को अमृतसर में एक जगह लेक्चर देने बुलाया था, बताया था आपको? और फिर उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हिंदी में बोलो। मैं बोला हे भाई कैसा हिंदी में कैसे बोलेगा, मैं तो इंग्लिश में बात करता हूँ या मराठी में बात करता हूँ, बिकॉज उधर कैसा रिच रहता है ना ये लोग। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं कि, मैं बोला ऐसा तो उन्होंने मेरे को बोला सर आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं जो अगर आप हिंदी में बात करो। मैं बोला पहले क्या बोला ए मैं बोला मैं इंग्लिश में बोलूँगा। मैं बोले हिंदी। मैं बोला मैं फिर मेरा क्या है, मेरा बॉम्बे का हिंदी है, आपको समझेगा ही नहीं। तो मैंने उनको चैलेंज दिया, मैं बोला मैं 5 वर्ड्स बोलूँगा, आप अगर उसका मतलब बताओगे तो मैं हिंदी में बोलूँगा। 3 वर्ड्स चलो। पहला वर्ड बोला सुमड़ी। उन्होंने गूगल वगैरह करके देखा बट कुछ नहीं, मतलब पोपचा। फिर बोला मगजमारी। बोले तुम इंग्लिश इज ओके। मैं बोला ऐसा सब वर्ड्स मैं यूज करूंगा। वर्ड फॉर टुडे चेंगटगिरी। सपरे काहीतरी परपोट देताय तुम्ही त्याच्यावरती तात्पर्य। चिंगूसगिरी, चिंगूस। बस सो हियर देयर इज अ सिंगल, हम लोग बहुत सिंगल लोगों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। सिंगल BF GF, यहाँ पे सिंगल सर्कस होता है। आपके बॉडी में भी कोई सिंगल, हाँ सिंगुलेट सर्कस स्टार्ट विथ C, नहीं तो एकदम आपका दर्द बाहर निकाल के उसको SINGLE ऐसा मत करो। सिंगुलेट स्टार्ट्स फ्रॉम CI, सिंगुलेट सर्कस, और उसके नीचे का गायरस ही सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट CINGULATE, सिंगुलेट, ज्यादा मन पे नहीं लेने का। अपने बॉडी में एक सर्कस सिंगल है, एक गायरस सिंगल है। सिंगुलेट सर्कस, सिंगुलेट गायरस, मीडियल फ्रंटल गायरस, मीडियल फ्रंटल गायरस। आज का रिकॉर्डिंग मेरा हर जो वो ये लिख रहा है ना उसका हर एक इस पे वो हिल रहा है। नहीं सर ये तुम लोग अगर जगह बनाओ नहीं इधर। नाही तू ते का तिथंच राहू दे, तू इकडे ये. चालू उस विल रिपेयर दैट, डोंट वरी. सिंगुलेट सर्कस, सिंगुलेट गायरस, मीडियल क्या इतना जोर से डिस्प्लेस मारेगा तू. सिंगुलेट गायरस, मीडियल फ्रंटल गायरस, बस. फिर हमने जब सुपीरियर सरफेस डिस्कस किया था तभी हमने बोला था वन सर्कस फ्रॉम द मीडियल सरफेस गोज अपीयर्स देयर, बोला था ना, थोड़ा टाइम पहले ही बोला था. क्या नाम था उसका? पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस. पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा यहाँ पे पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस. एंड there is one more circus called as calcarine circus. Calcarine circus. Calcarine circus. Calcarine circus. Okay? Calcarine circus. In between them, an area called as cuneus. 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 Before that, precuneus. प्रीक्यूनियस. ओके. फिर जो सेंट्रल सर्कस हमारी है ना, सेंट्रल सर्कस सुपीरियर लैटरल सरफेस की मेन, वो ऐसे यहाँ पे आती है. एंड अराउंड दैट इज पैरा सेंट्रल लोब्यूल. तो आपने देखा एक सर्कस मीडियल साइड पे है
वो सुपीरियर सरफेस पे जस्ट जाती है, इसका नाम क्या है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सरफेस। एक सुपीरियर सरफेस पे, वो थोड़ा मीडियल सरफेस पे आती है, उसके अराउंड एक लोब्यूल बनता है, उसका नाम क्या है? पैरासेंट्रल लोब्यूल इज द हाईएस्ट सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। पैरासेंट्रल लोब्यूल, पैरासेंट्रल लोब्यूल क्या है? हाईएस्ट सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। बाकी कंट्रोल मतलब रहता है, देर आर मल्टीपल सेंटर्स बिलो ऑल्सो, देर इज सेंटर इन पॉन्स, इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंटर क्या है? कॉन्शियसनेस। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हमारा ब्लैडर फुल है, फिर भी हम सोचते हैं, मतलब कुछ ही लोग सोचते हैं, बाकी सब लोग सोचते नहीं हैं। कुछ लोग जिनको पैरासेंट, तो आपको अभी कल से अगर कोई दिखा ना, कोई ऐसे ही रेलवे के किनारे इधर उधर, तो समझने का पैरासेंट्रल लोब्यूल में प्रॉब्लम, बिकॉज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर टू अवॉइड द यूरिन। ओके, सिंगुलेट गायरस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब, पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम अलग टॉपिक है, मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। लिम्बिक सिस्टम, बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया 12 बजे छोड़। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम, हाँ, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक अबाउट लिम्बिक्स। मेरा कैमरा नहीं है अभी। अंकिता लेके आओगे उसको? आप लोग कितने लोग कैंटीन में खाना खाते हैं? अरे बाप रे, बस बस हात खाली करा, एवढा खूप तुमच्यावर अत्याचार होते असं तुम्ही हात वरती करते। तो ऑर्डर वगैरह मिल के सब आ जाएंगे ना, फाइल्स। हाँ, वो लड़का किधर है, बाइक वाला? हाँ, क्या लाना है तुमको? CR, you have to arrange for punching machines. ओके, हर 10 बच्चे के पीछे एक पंचिंग मशीन होना चाहिए, 15 बच्चों के पीछे। चलो, टुडे यू विल हैव टू पंच योर पेपर्स एंड पुट इन द फाइल। ओके, सात मिस्ड कॉल। तो जब हम when we talk about limbic system, people feel first thing answer is emotion, because you are so emotional na, you say limbic. Limbic system has main function called as homeostasis. Homeostasis is maintenance, बराबर? Homeostasis of the self, homeostasis of the species. Therefore, the olfactory system is a major component of limbic system. अब बोलेंगे ये क्या इमोशन का क्या कनेक्शन है olfactory के पास? Lower animals, this system is more functional in lower animals and they function on olfaction. Maintenance of self means finding food. They find food like this. Placed for sleeping, वो कहीं पे भी सोने को जाएंगे ना, they sniff first, then sleep. You don't your smell your bed sheet. You know your mother comes, एक महीने से तो है कि गंदा बास आ रहा है. They will sniff and then sleep. आपके सामने कुछ खाते आप इधर उधर, फिर बोलते हैं चटनी खराब तो नहीं है, कल का है क्या? यानी तो खा लेते, बाद में देखेंगे, सिप्लॉक्स-TZ ले लेंगे. Animals don't eat. They know what to eat, what not to eat. Okay? So maintenance of self, they function on olfactory system. Maintenance of species, finding a mate, rearing of young ones,
all done with the help of olfaction. Therefore olfactory system is an important component of limbic system. एक गाय, उसका बछड़ा, वो बछड़े को भेजो या 1000 बछड़े सामने रखो, एक गाय को भेजो, वो अपना बछड़ा बराबर ढूंढेगी। ये मेरा है, आपका ऐसा है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ सर, तनिष्का। तनिष्का तो घर पे जाती है तो माँ तुमको ऐसे मिलके ऐसा करते, तनिष्का कमी। तुम लोग 6 महीने बाद घर पे जाते हैं, स्नेहल, हाँ स्नेहल आ जाओ। सप्रे, नार्वेकर, पृथ्वीराज, क्या ऐसा होता है? आई स्मेल करो नहीं, बिकॉज वी वर्क ऑन सेरेब्रम, दे वर्क ऑन olfact limbic system, and that is all. So maintenance of species, rearing of young ones, they do it very nicely. और lioness ही cubs को देखती है, उसमें no sharing of parenthood, no seminar। और टाइग्रेस बराबर बच्चों को ट्रेन करते हैं। अपने जैसा नहीं रहता है कि मैं ना जरा आज बाहर जा रहा हूँ किटी पार्टी के लिए, तुम बच्चों को संभालो। सब समझेगा तुम लोग को बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लोग का ऐसा नहीं रहता है। और लायनेस ऐसा नहीं बोलते, हम लोग जा रहे हैं सब लोग घूमने को, ए लायन, बच्चे लोग को देख, ऐसा चलता ही नहीं उधर। सो दैट इज, वो बराबर उनको ट्रेन करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, that all happens through olfaction. Therefore olfactory system is very important component of limbic system. Then there is emotions. आप लोग इतना खाली, आपको एक ही मालूम है olfactory, emotion. Then there is memory also, recent memory. So all those components are there. We'll study the limbic system in details later. Okay? So एवढं फक्त तू लिही, तुझ्यासाठी थांबतो मी 1 मिनिट. Maintenance of self, and therefore we use dogs for finding the criminal. तो क्राइम साइट पे उसको अगर स्मेल किया ना, वो वहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे वो चल। मेरा गाड़ी उधर लगा रहता है, आप लोग के हॉस्टल के उधर, गर्ल्स हॉस्टल, उधर कुत्ते हैं थोड़े से, तो वो सुबह सुबह आके भोंकते हैं मेरे ऊपर, मैं आता हूँ तो फिर मैंने उनको बिस्किट देना चालू किया। अभी मैं कहाँ से भी गुजरता हूँ, उस दिन मैं ना उधर ग्राउंड्स के लिए गया था सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ, तो सारे कुत्ते आ गए मेरे पास, तो बोले सर ये क्या हो गया? ऐसा ही। सो आई कुडंट टेल देम आल्सो, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड, ये आ गए अपने को बिस्किट देने वाला आदमी, पत्थर मारने वाला, वो बराबर से भाग जाएंगे। मेरे गाड़ी पे कुछ लिखने का नहीं। लास्ट ईयर के बैच ने, जब वो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट देकर आया था, रोज मैं गाड़ी पहुंचता था, उसके धूल पे लोग लिखते थे सर सेकंड टर्म में पास करा दो। फिर मैंने रिटर्निंग राउंड पे आ गया तो फिर बॉनेट पे लिखा, मैंने जाके कांच पे पानी मारा तो बॉनेट पे लिखा, फिर पीछे के, फिर इधर, मतलब डेली गेम्स खेल रहे थे बोले मेरे साथ। मैं गाड़ी का नंबर नहीं बताऊँ। ओके, so this you understood? यहाँ पे एरिया नंबर 17, 18 ऑक्सीपिटल लोब में एंड 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19. तनिष्का. So in the occipital lobe there is area number 17 which is काय झालं? Okay. इतना टाइम नहीं अपने पास, स्टार्ट बोलो पहले. So in the occipital lobe there is area number 17 which is primary visual cortex, 18 and 19 is secondary visual cortex. Okay, so first time we see a thing it goes in 17, it is stored in 18 and 19. The famous dialogue of our Bollywood movies, हमारे टाइम पे, आप इसमें नहीं रहते, राज कपूर नरगिस के मूवीज जब आते थे तो हर मूवी में राज कपूर नरगिस को बोलता था, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है. इवन आजकल भी कुछ कुछ इसमें रहता है डायलॉग, बट हमारे टाइम एकदम प्योर लव स्टोरी चलती. लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, दैट इज हाउ अ मेल ट्राइज टू अप्रोच अ फीमेल
whom actually has never seen but has seen and liked in the first sight. तो लगता है मैंने आपको कहीं देखा है और याद नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन एरिया नंबर 18 एंड 19. तो नेक्स्ट टाइम गर्ल्स, आपके सामने कोई भी ऐसा अनजान लड़का आता है, सडनली फूल देता है, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, बोलेगा तू पहले तेरा एरिया नंबर 18-19 चेक कर बाबा, राड़े है तेरे, देखा और याद नहीं आ रहा है मतलब क्या है, मेरे को नहीं तेरे को कुछ, वो तो फूल दिल दूसरे को दे. ऐसे आदमी के पास तो अपने को कुछ रिलेशन भी नहीं, नाता भी नहीं रखने का. ओके. एंड देन नरगिस यूज्ड टू से सपनों में देखा होगा. हम लोग को बाय हार्ट है. एंड देन राज कपूर यूज्ड टू से हाँ मैं सपने बहुत देखा करता हूँ. बंद. 17, 18, 19, तो अनिष्का, थैंक यू, यू कैन राइट डाउन. सो उतना ही इज देयर ऑन द. समटाइम्स यहाँ पे वो ऐसे कुछ सल्का वगैरह दिखाते हैं, बट दिस आर ऑल ऑन द एक्चुअली ऑन द इंफीरियर सरफेस. आपका लिखे हो गया 17, 18, 19. I don't want anybody to, yeah. काय ना इसमें हाँ वो अपन डिस्कस करेंगे, बहुत है टाइम लिम्बिक से. नाउ इंफीरियरली दिस इज फ्रंटल. इंफीरियरली फ्रंटल पोल के नीचे का ये जगह है, सॉरी फ्रंटल लोब का, दिस इज फ्रंटल पोल, दिस इज टेम्पोरल पोल, ये इंफीरियर सरफेस है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ सेरेब्रम. अभी तक मैं बॉर्डर्स नहीं बता पाया था. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर. ओके. दिस इज इंफीरोलैटरल बॉर्डर. ये इंफीरोलैटरल है एंड ये इंफीरोमीडियल है. तो आप जब सुपीरियोलैटरल सरफेस देखते हैं तो केवल सुपीरियर एंड इंफीरोलैटरल दिखता है. ये इंफीरोलैटरल के नीचे आप जाओगे, अंदर के साइड एक इंफीरोमीडियल भी है. नहीं समझा आपको? देखो ये लैटरल है, इंफीरोलैटरल. इसके नीचे आप हाथ डालोगे तो इंफीरियर सरफेस मिलेगा. इंफीरोलैटरल से आप हाथ डालोगे तो इंफीरियर सरफेस मिलेगा, वो एंड होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे दूसरा लोब रहेगा ऐसे. ये एक साइड का फ्रंटल है, ये दूसरे साइड का फ्रंटल. इंफीरियरली ऐसे दिखता है. ये बीच में कॉर्पस कैलोसम. तो इंफीरोमीडियल, ये इधर का इंफीरोलैटरल. तो दो इंफीरोलैटरल. ओके. हम नीचे से देख रहे हैं, ये हमारा नीचे का व्यू है. दिस इज फ्रंटल सरफेस. ओके. दिस इज पोस्टीरियरली, शायद इसको टेम्पोरल सरफेस बोलते हैं. यहाँ पे एक सल्कस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलैटरल सर्कस. कोलैटरल सर्कस, यही खाली डिफिकल्ट है, कोलैटरल सर्कस. और उसके बाजू में जो गायरस होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस. पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस. पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस. हिप्पोकैम्पस, ये वर्ड सुना है? सी हॉर्स, या सी हॉर्स like that. Hippocampus is a part of limbic system which is deeper to the parahippocampal gyrus. Para means around. It's a gyrus which is around the hippocampus, so called as parahippocampal gyrus. Parahippocampal gyrus. Then बाजू में एक सर्कस है जिसका नाम है टेम्पोरो-ऑसिपिटल सर्कस. टेम्पोरो-occipital sulcus. Temporo-occipital sulcus. The medial temporo-occipital gyrus, lateral temporo-occipital gyrus. ये frontal temporal की तरह है. Don't worry, one more lecture is going to be there on this topic. Okay? ये आगे का जो पार्ट है ना, this part is called uncus. अंकस. पैराहिप्पोकैम्पल गायरस का आगे का पार्ट इज कॉल्ड एज अंकस. 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 ओके. अंकस. सो मीडियल टेम्पोरो-ऑसिपिटल गायरस, लैटरल टेम्पोरो-ऑसिपिटल गायरस. यहाँ पे
यहाँ पे फ्रंटल लोब के नीचे देर इज ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। आप अगर देखोगे, आपने क्रीबीफॉर्म प्लेट देखा, क्रीबीफॉर्म प्लेट ऑफ एथनी, वो क्रीबीफॉर्म प्लेट में से ऑल्फैक्टरी नर्व्स ऊपर जाते हैं और ये बल्ब में एंड होते हैं। दैट्स व्हाई ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको मालूम है, कोड भी मालूम है उसको। Okay, so this is olfactory bulb, this is olfactory tract. The olfactory nerves are smallest, one of the smallest nerves. मतलब हमारे नाक से, from our nose, they just go up in the olfactory bulb. So they are very small. They are closest to the brain. इसके लिए कोई जब चक्कर आके गिरता है, तो फर्स्ट थिंग हम लोग चिमटे विमटी नहीं निकालते, चिमटी, दिल्ली पब्लिक चिमटी, चिमटी मार, क्या बात है, प्रोग्रेस। तो हम लोग वी डोंट पिंच, हम लोग सॉक्स लगा, फिर पूछते हैं हॉस्टेलाइट कौन है, हॉस्टेलाइट उसका सॉक्स, क्या है, मुंबईकर्स गो होम, योर मदर पुट्स योर washes your socks. Hostelite also mother only washes. Then they go home after 3 months, 6 months. So that is not useless, that socks. It can wake up an unconscious person. So the reason we put a socks like this here is because these nerves are so short, they immediately stimulate the brain. Now that will happen only when that person has become unconscious because of low sugar and all. वो स्ट्रोक आके गिरा है, आप 4-5 सॉक्स उसको okay, so socks is useful only when the person is collapsed due to low sugar. Young subject, कोई बूढ़ा 90 साल का ऐसा गिरा, उसके मुंह पे हो गया और आप उधर सॉक्स ठूस रहे उसके, don't do that. First thing you have to do is लोगों को ऐसा टेढ़ा करो because the tongue falls. Thank you. Olfactory tract I'll teach you later. बाजू में है उसके gyrus rectus and this is the last thing. H निकाला मैंने, क्यों निकाला H? नहीं होमवर्क नहीं, there is H for homework. H shaped orbital sulcus और उसके 4 gyrus होते हैं, anterior, इधर देखो राधिका, anterior, medial, lateral, posterior, एक H shaped orbital sulcus. थांबा लगेच बॅगा बिग्या पुस्तकं बंद करून भुकेच गेल्या नो. आपको क्या पता है मैं ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग किसके लिए? हाँ झालं 1 मिनिट थांबा, असू दे नहीं, आप जब बुक खोलोगे तो आपको ना ये जो रोस्ट्रम मैंने निकाला था ना, उसके आगे भी ऐसे आपको पैरा टर्मिनल गायरस करके एरिया दिखेगा जो मैं सिखा. दीज आर पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम. सम आई हैव नॉट टॉट यू ऑल द एरियाज, 40, 39, okay? So with that is just a preliminary information for you about cerebrum. Now next session we will study how the ventricles are, what forms the roof and floor of the ventricle and the white matter. Sorry, 3 minutes मैंने extra लिया. I'm sorry for that. Thank you.